यू आर लकी फॉर मी। उसके बाद तो मैं अभी टाटा स्टील का B2B डायरेक्टर, अभी तो मैं आई टेक 1.35 लाख रुपीज़ पर डे। वाह। वो अवार्ड जब मिला मुझे, ऊपर आपने रिकॉग्नाइज किया बेस्ट फिल्म के लिए और माइक पकड़ा दिया, बोला के एंड आई रिमेंबर दैट डायलॉग ऑफ योर्स है ना, तूने हाफ सैलरी किया, देख फुल अवार्ड मिली तुझे। सिनेमा, पता नहीं किसने ये शब्द इजाद किया जिसके अंदर माँ भी बैठी है। और सिनेमा इज़ अ माध्यम जहाँ पे हम लोग हमारा कुछ समय निकाल के अपने आप को एंटरटेन करते हैं, और इसको इंग्लिश में हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी बोलते हैं। आज फिर एक बार फिल्मी टॉक्स पे इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से मैं राज इसरानी होस्ट करने जा रहा हूँ इस ऐसे शख्सियत को जिसने शादी करने के बाद भी अपने मन की बात सुनी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आ गया आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ हिज एज। आज उसके साथ रूबरू मिलते हैं, तो मिलते हैं उत्कल नायक से। वेलकम उत्कल केसरी नायक, the way you love to be called. Want to start this journey of yours on this podcast on Filmy Talks for Indian film history. We'll be talking very candid and we will not mince any words. Our objectivity is for the audience to know where have you come from, what all have you done, what all you are doing, and what are your dreams. And the first journey will be your start. Where are you actually from? I don't think you are from Bombay. So I want to know your childhood journey, where all you have been and what all you have done. Please. So first of all, thank you so much for calling to your show. This is not the first time we are meeting actually. I know. So this journey started from like I guess like 1.5 years back. Yeah. When I was there in your award function, I was nominated. Then this was the first time I came to a award function. Oh. For the first time, not only as the audience, to get an award also. So thank you so much to create a new platform for the people, those who are like emerging into film world. Yeah. Or you can say there is a say called बॉलीवुड में काम करेंगे, वो पैशन रहता है जी। सो वो मौका आपने दिया सब लोगों को, एंड आई वाज वन ऑफ देम। एंड आई रिमेंबर द डे व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट मेल, आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस. You were nominated for 3. For 3, correct. I got 3 of them. You remember? Yes, I remember everything. I remember everything. So I got 3 of them on I got Best Film Award, which Yes. is the last and the best prestigious award in that phenomena routine. And I got first runner-up, I guess, in directions, and my actress got first actress award. So that is how my journey starts. But I am from. This is the trophy. This is the trophy. And I'll tell you about this trophy. I take that trophy that day from you, and I go back to home. I keep the trophy on my table. I took a photograph, and I looked the trophy around up to morning 6:30. You are looking at it. I'm looking at it. My entire people, those like a production head, my actress, the sound designers, everybody was there with me, and they all go to celebrate. To a club house and we're doing party. Party कर रहे हैं. मैंने उनको बोल दिया बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, go home. तबीयत ठीक नहीं थी, or you were in a emotion of happiness which you didn't wanted to part with the others? I was in a dilemma, I guess. I'll tell you before scene of that particular event night. Yeah.
So we are supposed to sit at the 4th row of that auditorium Yeah. at the corner. Mm. And when I was preparing myself, my production head was there. तू सूट पहन के जा, बहुत अच्छा लगेगा ना. मैं बोला यार पागल है क्या, हम लोग नॉमिनेटेड है, कुछ मिल नहीं रहा है. विनर नहीं है. हमको ये चांस मिला है कि हम उस पार्टी में जाएं, बैठें, देखें, सारे एक्टर एक्ट्रेस से मिले, राजेश रानी से मिले, बाकी लोगों से मिले, और वहाँ से फिर हम लोग कल्टी मारेंगे घर की तरफ. पहला फिल्म में कौन अवार्ड देता है यार, तू पागल है क्या, ऐसा नहीं होता है. सो वी आर प्लानिंग अराउंड दैट सर्कल. और फिर हम दोनों ने बाहर गया. थोड़ा देर बाद सब जैसे ही एक्टर्स आने लगे, सो द मेनी ग्रेट पीपल्स यू हैव कॉल्ड. विक्रम भी था उसमें, जी. है ना. सो फिर मैं बाहर चला गया वहाँ से, और वो साइड में एक दुकान है, सो वी गो फॉर अ सुट्टा. एंड एक 10 मिनट बाद मैं बोल रहा हूँ कि उसको ऐसे कुछ वाइब्रेशन आया मेरे अंदर. ऑल ऑफ अ सडन जो होता है ना कि आप जब रहते हैं लोगों के साथ, तो बोला यार बहुत बड़े बड़े लोग अंदर बैठे हैं, हम तो क्या एक फिल्म बनाए, शॉर्ट फिल्म है, कितना है उसको हाइप मिलेगा, नॉमिनेशन हो गया, ठीक है, अब देखेंगे किसका क्या काम है. और तू ना एक नोट निकाल के लिखना कौन कौन सा फिल्म जीता, फिर हम लोग उसका एनालाइज करेंगे कि ये फिल्म को क्यों अवार्ड मिला. करेक्ट. ओके. थोड़ी देर बाद वो बोल रहे हैं मुझे, क्या तू टेंशन मत ले, है ना, हम लोग एक आधा घंटा 1 घंटा रुकेंगे, फिर हम लोग चलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए. यहाँ तक पहुँच के बहुत बड़ी बात. ओके. सो फिर मैं आ गया अंदर, बैठा वहाँ पे. फिर पहला अनाउंसमेंट हुआ एक्ट्रेस का सब, और रनर्स अप में आयुषी को मिला फर्स्ट. तो मैं बोला हो गया, आज तो दिन बन गया. अब इसके नाम का पार्टी करेंगे हम लोग. करेक्ट. एंड वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, वी आर हैप्पी. फिर उसके बाद मुझे आपने बुला लिया, फिर फर्स्ट रनर अप डायरेक्टर में. तो बोला ये भी ठीक है, ये क्या हो गया. सो उस वक्त मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया पूरा. बिकॉज यू डिडंट विन. हाँ, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ करूँगा और यू नो पीपल विल अप्रिशिएट, और माइट बी जजेस विल अप्रिशिएट, यू विल अप्रिशिएट. और तो उतना ख्वाब तो है बड़ा सर, है ना, बट ये आप पहली बार बैट पकड़े और 6 मार रहे हो फर्स्ट बॉल पे, तो होता है ना सिक्योरिटी इशू आ जाता है. बिट अनबिलीवेबल काइंड सिचुएशन. एग्जैक्टली, सिक्योरिटी इशू आ जाता है. तो वो मुझे लगा. फिर मैं वहाँ पे, फिर उस दिन भी आप जब स्टेज पे मैं आप लोग को देख रहा था और सब लोग बैठे थे, अपने कितने सेलिब्रिटीज़ को बुलाए थे, आधे लोगों का नाम मुझे पता नहीं है सर. और फिर मुझे मीर बताता कि ये सीरियल करता है, ये इस फिल्म में है, इनको तुम नहीं जानता, ये बहुत बड़े रिपोर्टर है फिल्म के. तो वो मुझे सबको पहचान करवा रहा था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, यू आर राइट, आई टेल यू, है ना. करेक्ट. फिर वहाँ से आया सर, मैं नीचे उतरा और मैं बैठा, मैं चुप हो गया फिर, क्योंकि मुझे नहीं मिला. क्योंकि मुझे मिला नॉमिनेशन फर्स्ट रनर्स Runners-up, नॉट द yeah, लाइक winner. विनर ऑफ दैट. ठीक है. सो मुझे पहला मतलब डेब्यू डायरेक्टर और माइट बी फर्स्ट रनर, मतलब पीपल कंसिडर्ड मी एज अ पर्सन, दे एक्सेप्टेड मी समवेयर कि इसको फर्स्ट में रहना. सेकंड रनर्स भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था. सर मैं थर्ड भी होता ना तो भी मैं खुश होता. ओके. पर तुम चुप हो गए, यू सेड. हाँ, मैं चुप हो गया, बिकॉज मुझे जो मिला मैं वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे. अच्छा, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, सो दैट obviously. इन हैप्पीनेस यू बिकम चुप. हाँ, व्हेन आई एम लाइक, मुझे जब बहुत खुशी मिल जाता है फिर मुझे डर लगने लग जाता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो हुआ नहीं कभी आज तक. तो वो मैं थोड़ा सा होता है ना कि अपने टोटल्स को देखा होगा, या उसको थोड़ा से बना कहीं से टैप होता है ना, तो वो छुप जाता है अंदर. सो आई बिकम आइसोलेट. तो वही हुआ. गो इन अ कुकून. हाँ, मेरा कुकुन मेरा वो 1 आवर के रूम मुंबई का मलाड में. ओके. सो वो अवार्ड जब मिला मुझे ऊपर, आपने रिकॉग्नाइज किया बेस्ट फिल्म के लिए और माइक पकड़ा दिया, बोला के. एंड आई रिमेम्बर दैट डायलॉग ऑफ योर्स, है ना, तूने हाफ सैलरी किया, देख फुल अवार्ड मिली तुझे. That was a spur of a moment, I could say that. हाँ, because it was relating actually, है ना. एंड पता नहीं आपने मूवी देखा है सर? हाँ, ऑब्वियसली मैंने देखा है. तो वो अवार्ड लिया मैं, और आप देखे होंगे एक क्लिप है जिसमें अबीर जो मेरा एक्टर था वो बोल रहा है कि थैंक यू फॉर फिल्मी जॉब्स. मुझे बोलना भी नहीं आता अच्छे से उस समय, तो वो बोला और मैं नीचे से देख रहा था, मैं कुछ सोच रहा था. इस तरफ मेरा एक्टर, इस तरफ एक्ट्रेस खड़ी थी और मैं कुछ सोच रहा था. फिर वो मेरा हाथ उठाया, ही इज़ द मैन ऑफ द आर्ट, है ना. मैं फिर हाई बोल दिया कैमरा में और कुछ भी. फिर मैं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. आई गो बैक होम,
मैंने वो अवार्ड रखा और मैं उसको देखा सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक. देन आई कॉल्ड रमेश सिप्पी's assistant because he produced the movie. So मैंने उनको कॉल किया, मैं बोला सर से मिलना है. बोले क्या हुआ? बोला आई वॉन अवार्ड एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू सर बिकॉज मुझे नहीं लगता ये मेरे घर पे रहना चाहिए. ओह सॉरी, नो ऑफेंस. नहीं, नो ऑफेंस, इट्स ओके. एक्चुअली मुझे मेरे अंदर से ये फील आता था कि अवार्ड विल मेक मी फील कि तुमने कुछ अच्छा कर दिया और मेरा जो जर्नी है वो मेरा बंद नहीं हो जाए. ओह, माई थॉट प्रोसेस इज लाइक दैट कि ओके. अवार्ड कोई बेस्ट काम के लिए मिलना चाहिए. लाइक मैं अपने आप को बेस्ट उस समय तक नहीं बताता था. मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रोवेशन. और ऐसे इनिशियल स्टेज पे मुझे कुछ मिल जाए तो मैं सो नहीं पा रहा था एक्चुअली. I can visualize the way you are expressing. I have not experienced anybody narrate the फिल्मी शॉर्ट फेस्ट का जो अवार्ड इवनिंग था और जो gestures और emotions which have gone through. I cried. I have not experienced anybody talking to me like this, and I'm feeling blessed that God allowed me to get into this, and we'll be doing the same Filmy Short Fest 2025. 2024 I could not accomplish to execute it for various other reasons. Next year we are 100% doing it. So get ready with your next film also. I have told on stage also, sir. मैं दूसरी बनाऊंगा. नहीं, मैं बोला मैं 2-3 बना के आता हूँ. क्या पता अगर एक पे नहीं मिले, है ना. And कैटेगरी में you will be happy to know that by the time all these entries had come, I had not seen a single movie. Okay. Juries, तुम लोग देखो, मार्क दियो, जो करना है करो. आई डोंट वांट टू बी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि मैं देखूंगा तो मुसीबत है. मेरी नज़र अलग है. सो एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ प्लेटफॉर्म, आई डिड नॉट सी अ सिंगल मूवी दैन. आफ्टर दैट आई सॉ इट. पूरी हार्ड डिस्क लेके गया, कम से कम 15 दिन तक सब देखते रहा. गुड टू नो, एंड आई एम हैप्पी यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑफ दैट. वन मोर थिंग इज आल्सो देयर, सर. सॉरी टू इंटरप्ट, बिकॉज ये बहुत मैं वो फिल्म किया, अपने स्टेज पे सुना होगा, आई हैव नॉट पेड माय एक्टर एंड एक्ट्रेस, बिकॉज मैंने सबको बोला. ऐसे में मेरे वो एक मैनिफेस्टेशन होता है ना कि यार किसी को बोलते हैं कि कर लो यार ये मूवी, है ना. मैं रिक्वेस्ट करके सारे 3 एक्टर्स को लाया था. इट्स अ 3 पीपल स्टोरी. और किसी को पैसा तो देने के लिए मेरे पास नहीं थे. इक्विपमेंट सपोर्ट्स मिल गया था मुझे रमेश सिप्पी सर से, और स्टोरी उन्होंने अप्रूव कर दिया था. तो पूरा क्रू मेरा कॉलेज से था. आई वाज पास आउट फ्रॉम रमेश सिप्पी एकेडमी. तो पूरा क्रू उसमें था. और मुझे हमेशा से दिखाई दिया, एंड आई वाज स्पेंडिंग फ्रॉम माय पॉकेट सम ऑफ द मनी. और आपने अवार्ड के साथ पैसे भी दिए थे. एक लिफाफे में पैसा था. एंड वो मैंने लास्ट में दिया, मैंने स्टेज पे नहीं दिया. हाँ, बट इट वाज माय फर्स्ट साइनिंग चेक, सर. No, that was my emotion that people must have spent some amount of monies. क्योंकि ये जो short film is ecosystem which normally is built with friends and colleagues and people whom you know what they can contribute. तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते, फिर भी होते हैं. थोड़े बहुत तो होते. किसी के पास कैमरा नहीं है तो कैमरा भी हायर करनी पड़ती है. सो फिल्मी शॉर्ट फेस्ट जब हम सोच रहे थे तो हम सोचा कैश देंगे. बट देन लास्ट मिनट, एंड ऑफ द मिनट, आई डिसाइडेड एंड टोल्ड नीलेश हम ये कैश वाला एनवलप स्टेज पे नहीं देंगे. लास्ट में जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो दैट इज़ द टाइम आई कॉल्ड ऑल दी विनर्स. उनको सेपरेटली ऑन द स्पॉट तुम्हारे सामने सबको दिया था एनवलप. इट वॉज लाइक अ लास्ट बैक स्टेज करके दिया. सो एनवलप वॉज नॉट अ कैच, एनवलप वॉज नॉट दी अट्रैक्शन फ्रॉम माई साइड. सर उस पैसे का मैंने रेंट भर लिया था. रोड छाड़ के आना उड़ीसा से मुंबई टू परस्यू अ ड्रीम एंड टू एग्जीक्यूट इट एंड कंप्लीट इट, है ना. नॉट कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप, है ना. और उस समय पैसे का जो नीड होता है बहुत ज़बरदस्त होता है. वो पहला चेक था, सर. यू आर लकी फॉर मी. उसके बाद तो मैं अभी टाटा स्टील का B2B डायरेक्टर हूँ. सो अभी तो मैं आई टेक 1.35 लाख रुपीज़ पर डे. वाह. उस टाइम पे जो पैसा मुझे मिला था ना, वो पहला पेमेंट था, सर. मेरा फिल्म करने के बाद पहला पेमेंट था. वाह. सो थैंक यू सो मच. दूसरी पेमेंट की भी इंतजार करो.
वो भी मेरी तरफ अभी से आ फिल्म जाएगी, में इट विल ग्रो. हाँ, ठीक. I think thank you very much for sharing this first start में of my show and my dream. And my dream is only for the simple reason that I want people to get to be recognized for the work they are doing it behind the scene. And even this podcast, what I'm doing now, I'm only calling the people who are behind the scene. Okay. क्या काम कर रहे हैं. फिल्म बनती है and we get all infatuated with the stars, heroes and heroines. बट वो हीरो को जो डायलॉग बोलने का जो तरीका और डायलॉग जो बोलना है, उसके पीछे स्टोरी राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग राइटर है, डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर है, कोरियोग्राफर है, म्यूजिक है. देयर आर सो मेनी पीपल हु रियली मेक द फिल्म, बट वी unfortunately in fancy only the faces which we see and we relate. Correct. We laugh and cry with their emotions, but they are all acting. So I always want to go beyond the scene and showcase to the world कि film hero और heroine से खाली नहीं बनती. These are the people and their experiences. That is what my podcast is all about, where you share your journey. So we'll go back to your first stage of life. You started with my product only. Thank you very much. I started with my first step in Mumbai, actually. That was the first step. That was my first step. That was my confidence booster, actually. I got like मैं कुछ कर सकता हूँ kind of. Like people love me like on this way. So होता है ना. People will love you only for the content which you really do with a genuine heart and be realistic. लॉजिकली करेक्ट. हवा में तीर मारा और आसमान को लग गया, अगर दिखाओगे कैसे चलेगा भाई, नहीं होता. तो वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक एंड लॉजिकली करेक्ट, एंड पीपल आर रेडी टू हियर अ न्यूज स्टोरी एवरी डे. टुडे कंटेंट इज सो मच, माई बाप, so much is being produced, right from the YouTube to this OTT platform to television to cinema halls. Oops. If I may say that every day 500 hours programs are being produced, will be probably a less amount. So we are all trying to cover up and bring the news stories to the audience, and audience taste is also changing every day. So we'll go back to our original Before concept. that, I'll ask you one more question, sir. Please. Because it is turned now. The podcast. Oh, you are taking my podcast? So, are you going to make it like the short film fest का एक long format film fest? Not thought about at this point of time. First, this second season gets successful, then third season gets successful. After the 3 season, if God permits, I'm only a क्या बोलते हैं, कठपुतली. Whatever comes to me and I keep doing it. This was not in my design, but since I was doing Indian Film History, which is an archiving data bank, Okay. it has got nothing to do with, but then it was equally good so that new people can come on the platform. So, long format, God knows, and maybe you have a design. If it I'll come with a film then. That's what I'm going to do. So let's get back to our original format. Sir. Please share your journey, initial journey, your Journey means childhood. your childhood first. We are like 4 people in our house. Okay. Siblings. I have 2 sisters and 1 brother. One brother is small. 2 sisters are Older. older than me. And first sister, she is a teacher. Mhm. She got married. Second sister got married, and me on 3rd number. Okay, and my brother is there. So we are 4 people in family. Mother and father, they're like my parents are not that educated. Actually, they're not educated completely. My father, I guess he gone to school for standard 5th up to, I guess. ठीक है. It's okay. In those days it was okay. Those days, हाँ. बड़ी बात है. बड़ी बात है. 5वीं क्लास तक पढ़े. Which city you have born in? I born in Cuttack. Cuttack. There's a city, Yeah. twin city called Cuttack and Bhubaneswar. Yeah. So Cuttack I born because my father do a job there. Okay. That point of time, like that time. Yeah.
He was an electrician. ओके, Normally electrician used to like. ठीक है, हाँ. फेयर डील. And बट उन्होंने इलेक्ट्रिशियन होने के बावजूद तुम लोग को इतना पढ़ा लिखा के खड़ा किया ना यार, बहुत पढ़ा लिखा, बस हो गया ना. बहुत पढ़ा लिखा. Like So whether he was not educated is not a qualification. He made you quantify or qualify at this point of the time when the age is developing in a different format. खड़ा है, पढ़ा लिया तुमको, उसने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, क्षमता तो थी उनमें. नहीं, there is someone in my family who make me stand like this. क्योंकि उस टाइम में ट्रेंड चल रहा था, लोकल मीडियम स्कूल्स होते हैं ना, लाइक रीजनल स्कूल्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र वर्नाकल लैंग्वेज है, तो ओडिया मीडियम स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं. तो माय अंकल, आई हैव ओनली वन अंकल, उन्होंने पुश किया मेरे पेरेंट्स को कि इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में डालो या कोई ऐसा स्कूल में डालो. दे पुट मी इन कैम्ब्रिज स्कूल बाय रिक्वेस्टिंग सो मेनी पीपल्स हैंड एंड फीट कि इसको एक ऐसा स्कूल में डालो कि इसका करियर बहुत अच्छा हो, मुझे और मेरे भाई को. एनीवे, मैं वो स्कूल में गया, पढ़ाई किया, फिर मैं उस स्कूल से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज. आई होता है ना, फाइनेंशियल इश्यूज, कांट पे द मनी एंड बिल्स एंड ऑल. कैम्ब्रिज के बिल्स बहुत. नॉट बिकॉज ऑफ यू वर शैतान बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल. शैतान तो डे वन से, शैतानी में निकाला नहीं, शैतानी में नहीं निकाला, स्कूल ने नहीं निकाला. ओके, मम्मी पापा ने निकाल दिया, बोले कि घर के पास एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई कर. ठीक है. दिस इज हाउ आई You got graduation there only in Odisha? I didn't get graduation in Odisha. I have done BCA. Okay. Okay. So it was from Tata Infotech, Calcutta. Okay. After that, once your education was over, what came next? Then I got a management college. I can't name it because I'm a dropout from that management college. It's a very big college in India. Wow. We are talking to a dropout man. Backbencher, you can say. Backbencher. And one more thing I'll tell you. In 10th, I failed once. Okay. In CBSE board. Then if you'll see my certificate, there is written compartmental. Because I was failed in maths. मैथ्स खराब है? खराब नहीं था सर. एक्चुअली जिस दिन मैथ्स एग्जाम था उस दिन मैं कहोना पैर दिखने गया. So ऋतिक रोशन टू बी ब्लेम्ड. कहोना प्यार है, बच्चा फेल हो गया, क्या कर रहे हो भाई? No, it was a story I'll share with you. There is called a cinema hall called देवी दुर्गा. Okay. Okay. और उसके सामने एक ठेला वाला रहता है ना, गोलगप्पे खरीद. गोलगप्पे. तो बहुत मारपीट करके मैं ऊपर अंदर गया और बाय अ टिकट, फिल्म का टिकट, और आके मैं गोलगप्पा खा रहा हूँ. मेरा दोस्त साइड से आया साइकिल लेके और बोल रहा है कि तू जाएगा नहीं, मैथ्स पेपर 2 का एग्जाम है. तो बोला आज है एग्जाम. ओह सही. फिर मैंने ना वो टिकट और किसी को बेचा. 50-60 रुपये ज़्यादा लिए होंगे मैंने. ब्लैक में किया? हाँ, मतलब ब्लैक में क्या, अब टिकट नहीं मिल रहा है तो आप Okay. वन टिकट whoever wants and I give me pay. वो बोला कि सर 50 क्यों ले रहे हो? बोला मैं 50 दे के. और उस समय सर सिंगल थिएटर्स में काउंटर में ही ज़्यादा रेट में मिलते थे. तो आपको ब्लैक के पास जाने की जरूरत नहीं, उधर ही बैठा बाबू ब्लैक कर रहा है. सो फिर मैंने वो टिकट सेल किया, फिर मैं एग्जाम देने गया. तो आपको मालूम होगा क्या ही होगा उस एग्जाम का. तो ना कहो ना प्यार ने मिली और ना नहीं, मैं उसी दिन देखा. फिर रात को जाके देखे. रात को जाके. और मैंने बहुत मार खाया बिकॉज ऑफ मूवी. मेरे घर में सब परेशान थे मुझसे. और उसका शुरुआत हुआ मेरे पिताजी से. वन डे ही केम टू होम और बोले कि चलो हम तुम्हें फिल्म दिखाने लेके जाते हैं. बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं मेरे यहाँ पे आने तक का. ओके. तो पापा ने क्या किया, साइकिल में रॉड्स होते हैं ना आगे, तो उसमें मुझे बिठा दिया और छोटे भाई को मुझे पीछे बिठाया, छोटे भाई को आगे बिठाया और साइकिल लेके. उन्होंने एक सिनेमा हॉल था बहुत ही पुराना, एक चावड़ेगंज नाम है उस जगह का, कटक में ही है. इट वॉज लाइक 11 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस. और ही साइकिल 11 किलोमीटर विद 2 किड्स. विद 2 किड्स. वो वहाँ पे गए और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि उस हॉल में जब आप फ्री में देखने आते हो ना तो आपको सीट नहीं देते. ओके. सिंगल थिएटर्स था ना, नीचे होता और बालकनी होता है. तो नीचे वो क्या करते हैं, 2 प्लास्टिक के चेयर्स डाल देते हैं क्योंकि वो लाइनमैन का बेटा हुआ है तो इधर बिठा दो फ्री में तो देखेगा. सो जैसे सब लोग बैठ गए हॉल में, फिर 2 चेयर डाल दिया गया और फिर हम दोनों भाई आगे, पापा हमारे बीच में आना. एंड आई वाज इन स्टैंडर्ड 5th. बाप. सो मूवी का कीड़ा वहाँ से शुरू हुआ. दैट फिल्म वाज DDL. आय
DDLG. And I'm seeing something that I've never seen in my naked eyes throughout my surrounding. गाड़ी आ रहा है, शाहरुख खान निकल रहा है, खेतों में भाग रहे हैं, कैसे शूट कर कुछ पता नहीं. एंड एक आधा पॉइंट तक तो मुझे समझने में लग गया कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, बिकॉज वी हैव सीन मूवी उस टाइम में. आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक कोणार्क के टेलीविजन होते थे शटर वाले, वुडन शटर वाले, और उस ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को कलर करने के लिए हम लोग एक ब्लू कलर का फाइबर लगा देते थे. करेक्ट. स्क्रीन लगा देते थे उसका, है ना. वो बहुत मुझे अच्छा लगता था देखने में कि कलर हो गया कर. और वो हमारे घर पे नहीं था, एक घर छोड़ के एक बंगाली आंटी रहती थी, उनके घर पे हम लोग जाते थे देखने. और पहली बार मैंने देखा इतना बड़ा स्क्रीन. इट वाज लाइक ब्रेथ टेकिंग फॉर मी, मिसमराइजिंग. हाँ, इट वाज लाइक क्या चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ. आई वाज लाइक, मैं एक अभी के वर्ड्स में बोला जाए, इट वाज लाइक राइड. वो होता है ना सर, बहुत फास्ट जाता है वो राइड, क्या बोलते हैं उसको, वो राइड का नाम क्या है, वो जो बच्चे लोग को लेके जाते हैं. हाँ, पूरा. हाँ, जिग क्या बोलते हैं उस राइड को. छोड़ो लीव इट. देयर इज वो मुझे लग रहा था कि वो हम लोग रोलर कोस्टर. यस, रोलर कोस्टर पे मैं बैठा हूँ और देखा. फिर इंटरवल होता है, फिर पापा फिर उठते हैं. इंटरवल से 5 मिनट पहले वो उठा देते थे हमको, ताकि पब्लिक को त्रास ना हो. फिर पॉपकॉर्न्स आते थे, सब लोग खाते थे, तो पापा ने हमारे लिए भी पॉपकॉर्न लेके आए. फिर हम लोग बैठे. उस समय वो ऐसे हम लोग मल्टी स्क्रीन वाले पॉपकॉर्न नहीं होते थे, पॉलीथिन बैग में होते थे, वो वाइट कलर ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बैग. तो हम लोग खाए और फिर बैठे 5 मिनट बाद, फिर मूवी खत्म हुआ. फिर 5 मिनट पहले हम लोग उठे और आए और पापा हमें लेके आए. सर उस दिन मैं चुप हो गया था घर पे आकर. यू आर माइटी हैप्पी? नो, आई एम नॉट हैप्पी. मेरा छोटा भाई बहुत एक्साइटेड था, मेरी दीदी लोग पूछते थे, बिकॉज उस टाइम में क्या है कि बेटों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, यू नो, कि हाँ चलो बेटा को दिखाते हैं पहले मूवी. तो दीदी लोग नहीं गए थे, तो दीदी लोग मुझसे जानना चाहते थे स्टोरी क्या है. माई फर्स्ट नरेशन, और मैं बता रहा था कि ऐसा हुआ, और बोला तो खुश होना चाहिए, क्यों दुखी है. तो मैं उस दिन पूरा पॉज हो गया था कि ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसके बियॉन्ड एक लाइफ है, कुछ है वहाँ पे, उस दुनिया में कुछ है. सो दैट डे माई जर्नी स्टार्ट्स टू लव सिनेमा, और अभी तक है सर, यही है. देन आई डू एनीथिंग एवरीथिंग पॉसिबल. मैं जब +2 खत्म हुआ तो मैं बोला कि मैं फिल्म मेकिंग करना है, तो सब लोगों ने डांटा, घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिल्म मेकिंग करेगा, होगा नहीं होगा, है ना. और रीजनल फिल्म्स इतने अच्छे कर नहीं रहे थे उस समय भी हमारा. नॉर्मली उड़ीसा में रीजनल फिल्म्स जो होते हैं, कुछ कॉपी टॉपिक्स होते हैं, कुछ इनोवेटिव. बहुत पहले बहुत सारे फिल्म्स हैं जो बहुत अच्छा किया था, मतलब बहुत अच्छा आउटपुट है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था. फिर मैंने डिसाइड किया मैं मुंबई आऊँगा, और आई गेस लाइक BCA के बाद मैं मुंबई आया. कभी आए? मैं आया सर द ईयर ऑफ 2013-14 आई गेस. 11 साल पूरे हो रहे हैं अब. 11 साल अभी बार, सॉरी आई एम टेलिंग रॉन्ग. मैं आया सर एट द ईयर ऑफ 2009. 2009. 2012 में तो मेरा शादी हो गया था सर. ओके. 2009 में मैं आया मुंबई. 15 साल हो गए. हाँ सर, आया. फिर मैंने द फिल्म स्कूल ज्वाइन किया, द फिल्म स्टूडियो का जो ब्रांच है अंधेरी में, है ना. ओके. DE फिल्म स्कूल अंधेरी ईस्ट में. हाँ, तो मैं स्क्रीन राइटिंग करने आया वहाँ पे. ओके. मैंने एप्लीकेशन दिया, मैंने स्क्रीन राइटिंग सीखना स्टार्ट किया. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम राइटिंग, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट एंड हाउ टू. और उस समय मैं एक घर पे रहता था, जो मेरे दोस्त FTI से पास आउट थे सर, वो लोग रहते थे, एंड दे वर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग. वेट करते थे कौन खाना बनाएगा, कौन खाना लाएगा, काइंड ऑफ, है ना. वो पूरा एक छोटा सा 1 आवर के भी नहीं बोल सकते आप, मेस था. उसमें 3-4 बेड पड़े हुए थे, और सब अपने अपने बेड पे. सुबह तुम्हारा जिम्मेदारी है पूरा घर साफ करो, खाना बनाओ, डिवाइड द वर्क. हाँ, डिवाइड द वर्क. और मोस्टली लाइक आई एम वेरी मच नॉनवेज लवर, तो नॉनवेज के नाम पे अंडे मिलते थे. सो एनीवे दैट वाज अ गुड जर्नी. फिर मुझे 6 महीना बाद लगा सर कि ऐसे तो नहीं होगा, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू फोकस ऑन माई जॉब एंड करियर. सब लोग फिर चिल्लाने लगे, क्योंकि व्हेन यू स्टडी समथिंग यू आर नॉट टेकिंग अ स्टेप आउट टू जनरेट इनकम, तब तक आप बोझ ही हो.
देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन इवेंट कंपनी, है ना. और फिर मैं वहाँ से बाहर गया. आई गो टू मलेशिया, आई गो टू थाईलैंड टू डू बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स ये वो. एंड एक अच्छा प्रमोशन लिया मैं वहाँ पे. आई बिकम अ ब्रांडिंग एंड डेवलपिंग हेड ऑफ द कंपनी. Which company? दिस यूनाइटेड इवेंट्स एंड प्रमोटर्स, who works for various companies and major companies Wishcraft actually. Okay. एंड फिर हम लोग जो भी काम आता था बहुत शिद्दत के साथ हम लोग इवेंट का करते थे, और उसमें भी स्ट्रगल ही था. इवेंट्स आर ऑल्सो भी रात रात भर जगो. आप जो 2 घंटे का शो देख रहे हो, इतने लाइट्स पायरो और पूरा सराउंडिंग है, उसको माउंट करने के लिए आई थिंक इट टेक्स यू ऑलमोस्ट अ मंथ और सो. या इट्स अ मंथ का रिसर्च है ना. या फिर क्लाइंट से लेके आओ, अप्रूवल एंड ऑल दैट, फाइनेंशियल हर अप्रूवल. चीज़ करो, अप्रूवल लो. करेक्ट. और आपको एक मजे की बात बताऊंगा जो मैंने फेस किया अपनी लाइफ में. आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर. हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग. टिल देन आई हैव कंप्लीटेड माय ग्राफिक्स. ओके. मैं मैक से पास आउट हूँ, ठीक है. तो आई हैव डन माय ग्राफिक्स. तो जब हम लोग कोई ग्राफिक्स बनाते हैं, कोई विजुअल करते हैं कि इस स्टेज को हम लोग ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, और सामने वाले को देते हैं, तो सामने वाले को तभी आइडिया आता है कि क्या बेहतर हो सकता है. उसके दिमाग में कुछ है नहीं. इनिशियली यू आर ब्लैंक. यू आर ब्लैंक है ना. जब तुमने दिया तो तुमने फिर उसके दिया. बाद और दिमाग खुल गया. वो उसका खुल गया, और वो एक वर्ड बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगा, या तो बोलेगा मुझे अच्छा लगा, या और उसको पूछो क्यों नहीं अच्छा लगा, जवाब नहीं उसके है. पास जवाब नहीं. जवाब नहीं. पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, लाइक है ना. करेक्ट. भाई क्या नहीं अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा, तुम्हें Design अच्छी communication नहीं है. अच्छा नहीं लगा, कलर अच्छा नहीं लगा, टोन अच्छा, क्या नहीं अच्छा लगा. वो बस बोल देगा अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं है. लगा. और फिर आप अभी ये बड़ा टास्क है एक्चुअली, पता करना उसको क्या अच्छा लगेगा बिना उसके बोले. सो वो बड़ा टास्क हो जाता है. तो आप इवेंट में ऐसा ही होता है. I have gone through this, yes. You have gone through this, हाँ. Yeah. तो वो फिर हम लोग उसको कैसे तैसे करके मैनेज करते हैं, और फिर Make him उसको satisfied and go on it. Correct. फिर बहुत रिसर्च करते हैं, और साइमल्टेनियसली उस टाइम में भी मैं छोटे छोटे वीडियो सर बनाता था. Okay. अपने दोस्तों का कोई कुछ अचीव कर लिया तो बोल तेरा एक वीडियो बनाता हूँ मैं. बोले नहीं यार मुझे एक्टिंग नहीं, तू एक्टिंग मत कर, तू कल चल ये रोड पे, मैं कैमरा लेके पीछे भागूंगा, तू यहाँ से बैठ, ऐसे उठ, इधर खास, इधर हंस, इधर रो. सो आई हैव स्टार्टेड उस टाइम पे कि क्या करूँ, बट प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था. But you started shooting आई स्टार्टेड and directing kiddos. हाँ, बच्चों को सिखाना, डांस सिखाना जाके बच्चों को. मैं आई वाज लाइक इन 2001 में सर, मैंने शिमला में जो डांस कंपटीशन होता है ऑल इंडिया, उसका विनर था मैं. वाह. ओके. ये तो हिडन जेम है. हाँ. Okay. और मेरा स्कूल में मैं सर हीरो था, डांस में मैं हीरो था. डांस में अम्मा देख वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, अनस्टॉप दैट गोविंदा का. मेरी बातें सुनकर कभी हंसना नहीं, से झूठ मान कर कभी हंसना. सो आई डांस लाइक एनीथिंग. सो मुझे कहीं से होता है ना कि आप किसी को पूछ लो, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको पूछ लो कार कौन सा लेना है, तो वो अपने आप को डिप्रेस तो नहीं करेगा. बोलेगा नहीं यार, तू किसी ऐसे इंसान को पूछ जिसके पास कार है, वो आंसर देगा, बोले स्कॉर्पियो ले ले तो तुझे अच्छा लगेगा. लाइक यू आस्किंग समबडी, यू आर इफेक्टिंग हिज ईगो, तो वो तो आंसर देगा ही कुछ ना कुछ. सही है. बट यू हैव टू आस्क अ राइट पर्सन अ राइट क्वेश्चन. करेक्ट है ना. तो मैंने उसको पूछा कि यार कैसे एक फिल्म मेकर बने, कैसे डायरेक्टर बने. डायरेक्टर बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है. तुझे डांस सीखना पड़ेगा, सीख लिया. तुझे कराटे सीखना पड़ेगा, ताइक्वांडो सीखना पड़ेगा, सीख लिया. तुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, तुझे डायलॉग्स याद करने पड़ेंगे. So you went on abiding by every craft. Everybody, those who like, मैं सर ताइक्वांडो में हूँ. I go to up to red belt. I'm into dance. मैंने ओडिसी बेस सीखा, फिर मैंने ब्रेक डांस सीखा. मेरी टीचर्स आज भी मौजूद हैं, वो मुझे अप्रिशिएट. बॉबी इस्लामी इज अ डायरेक्टर नाउ. ओके. सो बॉबी सर इज अ वेरी, मतलब वो वही थे जो मुझे लास्ट रो से फर्स्ट रो में लेके आए. ओके. होता है ना जब स्कूल में आते हैं डांस सिखाने के लिए, सो यूर इन लास्ट रो, फिर आप थोड़ा अच्छा किए, फिर मिडिल रो, फर्स्ट रो, फिर आप हीरो. फिर लोग फाइट करते थे काला हीरो कैसे बनेगा काइंड ऑफ. फिर भी क्योंकि मेरे से अच्छा कोई नाचे तो आगे आए. सीधी बात है. सो मैं बन गया सर, जबरदस्ती है ना. लाइक आई अचीव्ड दैट पोजीशन बाय शोइंग माय टैलेंट ओनली, कि नहीं मेहनत तो करना है और क्या करना. तो पढ़ाई तो इफेक्ट होता था सर, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था. ऑडियंस सुन रहे हो,
कोई भी काम शिद्दत से करना है तो फिर उस कला की जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं सीखनी पड़ती है, और अपने आप को टॉप में मत लाओ, नंबर 1 पे मत लाओ। नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग, एंड दिस बॉय हैज़ डन everything possible on earth to make himself reliable and confident that he can direct, and he has started directing, and he has won his first award as he gave his story. I'm much thrilled. His beyond the scene expressions are mind blowing. तो कल एक बात बताओ, you being a mechanical engineer, then you learned karate. Not mechanical engineer, BCA, like BCA. Okay, BCA. उसके बाद कराटे सीखे, taekwondo सीखे, डांस सीखे, डांस में मास्टरी की। Only taekwondo सीखा सर मैं, डांस सीखा मैंने। Yeah. From various teachers. And CP स्कूल ज्वाइन किया। फिर मैंने cinematography किया, sorry screen play किया मैंने। Screen play. From the अंधेरी। film school. Yeah. फिर मैंने रमेश सीपी ज्वाइन किया। इट्स अ लाइक स्टोरी बिहाइंड ज्वाइनिंग रमेश सीपी एक्चुअली। एंड देन एज यू सेड अवार्ड भी जीता, पहला अवार्ड जीता। अब पहले अवार्ड को जीत के आज 1 साल हो गया लगभग। इस 1 साल के दौरान और क्या किया, वेयर हैव यू लैंडेड, एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट जर्नी, एंड व्हाट इज योर ड्रीम? 3 सवाल हैं एक ही सवाल में। व्हाट हैव यू डन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ड्रीम तो सर इफ आई बहुत गुस्ताखी हो जाएगा, बट आई वांट टू से मुझे कहाँ पहुँचना है। कहाँ? हु इज योर आइडियल? फॉर एज इन डायरेक्शंस, व्हिचएवर आइडियल रखते हैं ना कि हमको इनके जैसा बनना है, या कोई भी एक मन में फिगर होती है, एक छवि होती है। शाहरुख खान बनना है। शाहरुख खान एक्टिंग में शाहरुख खान है, मुझे डायरेक्शन में उनके लेवल तक जाना है। बहुत सारे आइडल डायरेक्टर्स हैं मेरे, जैसे इम्तियाज़ अली सर हैं, एस राजामौली है, माइकल बे, एंड गुरुदत्त वाज माय इनिशिएटिव, लाइक जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ मोस्ट ऑफ द, क्योंकि आप कोई भी फिल्म स्कूल जाओ पहले वो कागज़ के फूल दिखाते हैं ना, फिर समझ में आता है कि अरे उस टाइम में वो 50 साल बाद का विजन रखते थे। करेक्ट। ओके, तो वो अच्छे लगते हैं। रोहित शेट्टी, ऑब्वियसली आई लव रोहित शेट्टी, बिकॉज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि लोग ऐसे ही परेशान हैं पूरी दुनिया में, है ना, तो थिएटर आते हैं तो हंसे मुस्कुराए, एंटरटेन हुआ और घर जाए। करेक्ट। परेशानी यहाँ पे भी दिखाऊं, रुलाऊं तो कैसे होगा, क्या मतलब है, क्या मतलब है। सो आई लव द थॉट उनका जैसा है, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स 3 Idiots, एवरीबडी लव्स द फिल्म व्हाट lot of films are there. Yeah, so what did you do last 1 year at least? कुछ लिखा या कुछ एक्टिविटी किया? Sir, I am like, I have a thought like 7-8 years back when I started from भुवनेश्वर से जब मैं शुरू किया था, उस समय मैंने एक टॉक शो होस्ट करने का, नॉट लाइक पॉडकास्ट टॉक शो, ओके, एक प्रॉपर टॉक शो स्टार्ट करने का मैंने सोचा था, और मैंने स्टार्ट भी किया था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज डूइंग मार्केटिंग फॉर मेफेयर होटल्स। Okay. It's a very big, hotel chain in India. और मेफेयर को शाहरुख खान, सचिन्स बेस्ट होटल वाज मेफेयर भुवनेश्वर। Okay. तो मुझे एक चांस मिला वहाँ पे रायपुर मेफेयर में मार्केटिंग करने का और डिजिटल PR उसका हैंडल करने का और काइंड ऑफ। तो मैंने वहाँ पे उनकी एक डायरेक्टर हैं आस्था रे बोल के, शी इज़ अ वेरी गुड लेडी। तो उनको मैंने अपना एक विजन बताया कि आई वांट टू स्टार्ट अ शो, आप मुझे अपना होटल दीजिए, होटल दीजिए, कोई भी एक कोना दे दीजिए मुझे, लाइक लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल के साइड में, क्योंकि बड़ा होटल था वो, और मैं वहाँ पे 10-11 एपिसोड बनाऊंगा। एंड माई शो नेम वाज, उस समय तो रजिस्टर नहीं किया था, अभी तो फिलहाल मैंने रजिस्टर कर लिया। शो नेम वाज द लोकल MBA। ओके। So it's a very catchy name, local MBA. लोकल MBA MBA कभी लोकल नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। So I started shooting 1-2 एपिसोड वहाँ पे। फिर क्या होता था कि हम लोग शूट करते हैं तो लाइट लेके जाते हैं, कैमराज लेके जाते हैं, सही है, एक OTS, एक रिवर्स OTS, एक मास्टर लगाओ, ये वो करते हैं। तब तक मैं फिल्म मेकिंग करने आया नहीं था सर। ओके।
तब तक मैं मुंबई आया नहीं था. Okay. Neither I have joined directions और neither I have joined Ramesh CP Institute. ओके. उस समय मुझे लेकिन देख के समझ के पढ़ के समझ में आ गया था और सारे टर्म्स में जान गया था. प्रैक्टिकली करता था मैं. मेरे पास कैमरा है. ओवरऑल मैं जॉब करता था, मेरे पैसे थे उस समय, मैं कैमरा खरीदा था. तो मेरे पास 3-4 कैमरे थे. ठीक है. ओके. और मुझे नहीं पता था कि एक ही कैमरा रखना होता है तीनों. यू नो आई नो हाउ टू डू इट, बट एस्थेटिकली क्या करेक्ट है क्या नहीं है वो टर्म्स हम लोग नहीं जानते थे. करेक्ट. तो मैं 3 कैमरा रखा. मैंने एक एपिसोड शूट किया एक मैडम का. वो उनका ओडिशा में बहुत अच्छा सैलून का चेन है. उनका मैंने वो एपिसोड आज तक रिलीज नहीं हुआ है ना. ठीक है. अच्छा. सो मैंने पूरा सूट वूट पहना और वो मैडम को बोला आप सैलून के ओनर है एंड ही इज मेकिंग गुड मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. 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 कुछ 25 सैलून होंगे उनके. वाओ. ओके. एंड द लेडी वाज वर्किंग विद ICICI बैंक. उन्होंने जॉब छोड़ा, अपने हस्बैंड के सपोर्ट में उन्होंने सैलून स्टार्ट किया और ह्यूज सी बिकम्स ह्यूज है ना. मैंने उनका एक इंटरव्यू प्लान किया और कैमरा सेटअप किया. मैंने रिकर्सर पहला ही दिन पहला एपिसोड मैंने शूट किया. शूट खत्म हुआ. ठीक है. और मैंने जो भी मेरा फॉर्मेट है, आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ द फॉर्मेट. हाँ. सो वो फॉर्मेट में मैंने पूरा खत्म किया वो लोकल MBA का एपिसोड और उनको मैंने अप्रिशिएट किया. फिर जो हम लोग को हैम्पर्स वगैरह देना था वो देके हम लोग वहाँ से निकले. सेकेंड डे मैं फ़ोन करता हूँ तो उनका मैनेजर बोलता है कि आप शूट नहीं कर सकते. शूट नहीं करो. नहीं, बिकॉज आपके कारण, क्योंकि उनके बहुत ही VIP गेस्ट होते थे, लाइक इंटरनेशनल नेशनल गेस्ट रहते थे वहाँ. ओके. बिकॉज दैट वाज अ हब. लाइक कोई इंडियन क्रिकेटर भी जाएंगे तो वहीं रहेंगे. ओके. 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 तो आप ऐसे वो लॉबी पे वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिक और कैमरा और लाइट्स लेके नहीं घूम सकते. हाँ. सो दे आर राइट ऑन दैट वे है ना. ठीक है. उनको लगा क्या बच्चा शूट करेगा तो 2 लोगों को लेके बिठाएगा कुछ शूट करेगा. They didn't have idea of कि पूरा सेटअप करना कि मैं पड़ेगा. पूरा सेटअप करूंगा बिकॉज आई वांट माय प्रोडक्शन शुड बी लुकिंग रिच. बाबा वो ऐसा होना चाहिए. करेक्ट. ओके ना. ओके. फिर वो रिजेक्ट हो गया मेरे से. वो रसेस अभी भी है मेरे पास. ओके. ठीक है. ओके. और मैंने पूरा शूट इंग्लिश लैंग्वेज में किया था. ओके. ताकि लोगों को पता चले. बिकॉज आई वाज सिटिंग इन मेफेयर. उस होटल में मैं कभी मतलब एक रूम लेके रहूं ऐसा मेरा ड्रीम था कभी, है ना. फिर बाद में मैं उनके साथ काम किया बहुत दिन. दे आर गुड पीपल्स, है ना. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिजेक्शन मिला मुझे, है ना, मैं बोला नहीं ऐसे तो नहीं होगा, है ना. तो कुछ I don't think that was a rejection. That was a रिजेक्शन नहीं था. That was a disturbance to the elite guests who are staying in the hotel. Correct, I think correct. that was not rejection not to a your work. rejection, हाँ. No, that's not a rejection. हाँ, because they told me no. No, for First, the reason. for the reason, because of the elite clientele they had, and they didn't wanted this nuisance to be created even for 2 hours. Correct. You know, that must be the reason. Not They are very professional on Correct. that way to Guests. treat their guest. Correct. That way of Correct. hospitality. Correct. They are like heritage nowadays. And Yeah. big now. Yeah. Okay. So I shifted to office again. Then I started working. I joined a company called Neve Assets, and I work as a GM over there. Then I promoted to CEO. Then I promoted to a director board. okay. Okay. Then one day I told my boss, Mr. Nilesh Patel was there, and Govind Patel, both of them, that I want to make a company called United Pixel, and I want to grow on that way. Okay. This is a digital PR agency. Okay. Okay. And I started this company, being him with me as a partner for a 50% share. मतलब तुम कहाँ जाएगा, तुम इधर ही करो. Then I started, and it run very well in COVID because कोई मार्केटिंग हो नहीं रहा था बाहर. Okay. पोस्टर वगैरह, है ना. Okay. People started looking for a digital PR, and we rise up And you were good in graphics and all. Yeah. And I directed motion ads and everything for Mayfair also, for many companies, Monginis also. And we at the pick of the time, like 30-35 companies came to our lobby. Everything was settled. On one fine day I decided I'll move to Mumbai. Wow. All of a sudden, I don't know, like, ठीक है. I was sleeping, I was in 37-38 age, and I was thinking के वो जो सपना मैंने देखा था, like I want to be a movie director, वो कभी पूरा होगा. कैसे होगा वो? कैसे होगा? अभी तो मैं इधर बैठ के तो नहीं होगा. फंस गया. ये तो यहाँ पे तो मैं पैसा कमाने के ताक में हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहे हैं. जी. पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं और ओल्ड हो जाएंगे, तब तो छोड़ के भी नहीं जा सकता मैं. शादी हो गया, मेरी एक बेटी है. सो वन फाइन डे मैंने अपने घर पे बोला, मम्मी पापा को, वाइफ को, सबको,
लीव मी फॉर 10 days, अच्छा, आई विल कम बैक. ओके एंड आई स्विच ऑफ माई फोन. आई वेंट टू गोवा. मेरा एक वहाँ पे भाई रहता है, ओके राजू भाई करके, माई सिस्टर्स इन लॉज में, Okay. देवर है उनका. तो मैं वहाँ पे चला गया भाई के पास, और वहाँ पे वो ऑफिस जाता था अपना रेगुलर, उसका जॉब है, वॉज एन एक्स नेवी पर्सन. ओके सो वो जॉब जाता था, उसके घर में मैं चुपचाप बैठा रहता था. शाम को मैं सी बीच जाता था, वहाँ बैठता था सर, 4 बजे मैं घर आता था. ऐसा मेरा 10 दिन मैंने किया. एंड वॉज क्लियर कि मुझे करना क्या है उन 10 दिनों में. प्लॉटिंग कर रहे थे. प्लॉटिंग कर रहा था मैं क्या करूँगा, कैसे स्टेप लूँगा. उस बीच में मैंने सब लोगों को फ़ोन किया मुंबई में, जो लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं कुछ, है ना. फिर मैं वहाँ से उठा, घर आया, घर में बोला कि मैं मुंबई चला जाऊँगा. तो बोले यहाँ पे एस्टेब्लिश बिजनेस है, माई पार्टनर्स ऑल्सो, वो लोग भी पढ़ गए, इतना कुछ खोल दिया तुमने, तुम्हारे भरोसे हम लोगों ने. बोला मैं संभालूंगा रिमोटली, एवरीथिंग आई विल हैंडल, है ना. लेट मी गो प्लीज, आई वांट टू गो. मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा. देन आई पैक माई बैग. आफ्टर 10 days आई मूव टू मुंबई. सोलो. ओके. नॉट विद फैमिली. सर अकेला. हाँ, शुरुआत तो अकेले से ही एंड माई करें. इनकम वाज ओनली वन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. माई कंपनी वाज रनिंग एंड दैट इज व्हाट. सम अमाउंट इज कमिंग टू माई पॉकेट, लाइक यस. 1-1.5 लाख रुपए आसपास आई वाज गेटिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी यूज्ड टू गिव सैलरी टू अस, है ना. ठीक है. और कभी लॉस में चला गया, किसी महीने 2-4 कंपनी निकल गए, तो फिर यू हैव टू ड्रॉप योर सैलरी ओनली, पे टू पीपल. जी. फिर ऐसा हुआ 1.5 year मलाड में रहता था. शेयरिंग ऑटो पकड़ के मैं मलाड स्टेशन जाता था. वहाँ से 10 रुपये की लोकल पकड़ के सांता क्रूज उतरता था. वहाँ से शेयरिंग ऑटो लेके कलिना यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, वहाँ से पूरा दिन क्लास करता. मेरा क्लास 3 घंटे की होती थी सर, और जिसका भी क्लास हो उसका प्रोजेक्ट में मैं हाथ बैठाता था. जैसे मेरी सीनियर्स होते ना, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं 3 साल का पूरा कोर्स करूँ, तो मैंने 11 months का शॉर्ट कोर्स मैंने डायरेक्शंस पे किया. तो लेकिन जो 3 साल की क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके वो कभी भी बुलाए कि उत्कल आर्ट का काम करेगा क्या, मैं हाँ करूँगा, आ जाओ. तो मैं जाता था. एंड एवरीबडी इज लविंग मी बाई सीइंग माई पैशन, है ना. मुझे अगर बोलते हैं ना किचन सेटअप करो, है ना, मैं पूरा एकदम कांदा अच्छे से गोल गोल काट के, वो ऑमलेट बनाना ना एक्टर को, ठीक है, अपन रेडी है. सो कांदा काटो, प्याज काटो, वो सब कुछ रेडी करके उसको देता था पूरा, है ना. सर ठीक है, ये सर डायरेक्टर ऊपर से होना, सर करिए. फिर मैं देखता था डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट करता है. सो साइमल्टेनियसली मेरा प्रैक्टिक होता था और सब कुछ होता. फिर आया ब्लैक बुक का बारी कि आप सबमिट करो अपने मूवीज ऑन ब्लैक बुक में, लिखो पूरा चीज सर. एंड आई वाज द फर्स्ट मैन टू सबमिट द फर्स्ट कॉपी. ओके. और मैं सिलेक्ट हो गया सर. वेरी गुड. देन हियर कम्स योर अवार्ड. ये एंटायर जर्नी था मेरा. सो 11 महीने का मेरा जर्नी था. इट एक्सटेंड टू 13 months. ओके. और उसका रिजल्ट ये है कि वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी में के अंदर जो फिल्म डिपार्टमेंट है ना अपना, रमेश सिप्पी का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक लगा हुआ है, मेरा और रमेश सिप्पी सर का पोस्टर लगा हुआ है. वाव, ब्रिलियंट. सो उतना ही. तो उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट गया नहीं सर. सॉरी, मैं थोड़ा भाग गया. आपका सवाल ये था कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ. सो लोकल एमबीए कैसा. लोकल एमबीए का क्या हुआ. लोकल एमबीए सर, मैंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को, मतलब बहुत बड़े चैनल है एक्चुअली, मैंने उनको पिच किया. ओके. एक मेरा थॉट है एक्चुअली लोकल एमबीए को लेके, बिकॉज लोकल एमबीए इज, आई नीड टू प्रमोट सम बिजनेस ओनर्स जिन्होंने अपने दम पे बिजनेस क्रिएट किया है विदाउट गोइंग एनी बी स्कूल. मेरा थीम था वो. ओके. तो पहला शॉट जो मैंने लिया था मेफेयर में, उसमें मैं सूट पे था, और वो बंदी भी जो लेडी थी वो भी सूट पे आई थी. तो मैं जब कॉन्वर्सेट कर रहा था इंग्लिश में पूरा, वो सूट हम लोगों ने एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट किया था, और उसका आउटपुट जब मैं देखा, मुझे लगा कि मैं किसको मोटिवेट कर रहा हूँ. देखो, जिनके पास पैसा है, जो दोज हु कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, वो लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे जॉब पे या अच्छे बिजनेस में स्टेबल है, अच्छे मुकाम पे है, अच्छे मुकाम में है. या तो कोई नहीं भी है तो भी व्हेन यू आर सेलिंग, बिकॉज वहाँ पे स्किल्स जो थे ना, मेरे बेस तो मार्केटिंग ही है, लेकिन जब आप व्हेन यू आर सेलिंग ऑडी, यू आर टारगेटिंग 3% ऑफ द ऑडियंस, और मे बी लेसर देन दैट, है ना. And when you are selling a cycle or a bike or a pulsar or something, you are targeting a mass audience, right? Yes. मेरा शो 80% ऑडियंस के लिए होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए. आई वॉन्ट टू मोटिवेट दैट 80% ऑडियंस दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस दैट दिस जेंटलमैन हैव स्टार्टेड, है ना. ओके. तो फिर वो OTT के साथ वही थोड़ा सा, वो भी चाहते थे कि मैं सूट पे हूँ,
कि तुमने पुराना फॉर्मेट दिखाया होगा ना मैंने उसको। दिखाया। तो दिखाते हो सूट में और फिर बोलते हो मैं जांघिया पहनूं, कैसे चलेगा यार? जांघिया नहीं ओ यानी दैट्स अ वे ऑफ एग्जैक्टली, Yeah. बट लाइक मैं चाहता था कि मैं एक टी शर्ट पहनूं नॉर्मल सा, Okay. पैंट पहनूं, बिकॉज मेरा शो का हीरो जो है ना वो गेस्ट है जो आया है। मैं बहुत ही एकदम बहुत सारे 15-20 स्कैनर लगे वो पूरा मेरे आने पे, मेरे एंट्री पे ताली नहीं बजनी चाहिए, मैंने कुछ अचीव नहीं किया अभी तक। ओके, बंदा जिसको मैं बुलाया हूँ उसने 100 करोड़ कमाया सर, करेक्ट। है ना। और वो अगर आ रहा है बहुत ही सिंपल कुर्ता पहन के, मैं वहाँ पे जाऊँगा सूट पहन के, दैट विल लुक बिट ऑड। हाँ, इट विल लुक एब्सोल्युटली ऑड, Odd, इट्स नॉट yeah. बिट लाइक इट लुक। और वो चीज़ पे क्रिएटिव डिफरेंसेस क्रिएट हुए, है ना। हम लोगों ने शूट भी किया थी, पता नहीं 3-4 एपिसोड के बाद क्यों बंद हो जाते हैं मेरी। सो 3-4 एपिसोड हम लोगों ने शूट किए। फिर मैं बोल रहा कि जब एडिटिंग में बैठा, बिकॉज सर आई हैव टोल्ड यू आई नो हाउ टू एडिट अ फिल्म, आई नो हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, आई नो हाउ टू पुट एक्शंस, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं उनको बोला कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम डाल देंगे ना तो ये हिट नहीं होगा बहुत बड़ा, है ना। लोग पसंद नहीं करेंगे बिकॉज मेरा फुटेज कम आना चाहिए, सामने वाले का बहुत ज़्यादा आना चाहिए, उसका स्टोरी लोग जानने में इंटरेस्टेड है। करेक्ट, पीपल विल बी मोटिवेटेड, द यंगस्टर्स, द यंग मास विल बी मोटिवेटेड बाय सीइंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, नॉट मी। करेक्ट। एंड इफ आई हैव अचीव्ड समथिंग, सो मैं किसी शो में बुलाया जाऊंगा, जैसे सर ने बुलाया मुझे। अभी तो कुछ अचीवमेंट नहीं है, पता नहीं आपने क्यों बुलाया सर। अचीवमेंट है ना, यू वन द अवार्ड एंड यू आर रनिंग अ कंपनी पैरेलली while remotely you are achieving something which is not everybody's cup of tea. आज अगर तुम एजेंसी चला रहे हो, एजेंसी चल रही है भुवनेश्वर में, तुम बैठे हो बॉम्बे में, एजेंसी कर रही है मार्केटिंग, तुम कर रहे हो अपने क्रिएटिव एम्बिशियस, दिस इज अ mix of these two things which you are doing, which not everybody does it. So for me, I need to tell your story to the youngsters who want to come into the entertainment industry, that what all you have to go through. Even at the age of 38, you can dream of leaving your running business and family and घर का गरम खाना छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के गोवा में जाके सोचने का और बाद में तय करने का, माई डेस्टिनेशन इज मुंबई मलाड एज अ बैचलर। हिम्मत चाहिए भाई, I'm a married bachelor. हिम्मत चाहिए। Yeah. तो ये हिम्मत अगर इस पॉडकास्ट से कुछ 5 लोगों को भी ये मोटिवेशन मिले, मेरे ख्याल से मैंने मेरा काम कर लिया। Absolutely, absolutely. Because see, मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं सब लोग, है मैंने देखा है। मैं ऐसा कोई स्ट्रगल, मतलब यहाँ पे आया तो मेरे पास तो कुछ पैसे रहते थे, स्ट्रगल मैंने देखा हुआ है, आज भी लोगों को देखता हूँ। दे आर वर्किंग इन एज अ फोकस पुलर, दे आर वर्किंग एज अ सेकंड कैमरा। मेरे ही दोस्त हैं बहुत सारे, है ना जी, वो काम करते हैं, थोड़ा दिन काम मिलता है, थोड़ा दिन काम नहीं मिलता है। आई नो देयर इज अ कंपटीशन इन मार्केट आउट, है ना। यस, है ना। किसी को क्रेडिट भी नहीं मिलता। यू नो फोकस इज सच अ बिग सब्जेक्ट, है ना। ओके, नो क्रेडिट, गोस्ट, हाँ, गोस्ट राइटर्स, मेरे एक दोस्त को मैंने गोस्ट म्यूजिशियंस। मेरा एक दोस्त है, सिनेमाटोग्राफर है जी, FTA पास आउट है, और पता नहीं उसका नाम लूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, विल नॉट रिवील। तो वो बोलता है कि मैं फोकस करता हूँ भाई, और अपना बीच में आउट ऑफ फोकस कर देता हूँ। आउट फोकस करता हूँ ना तो लोगों को पता चलता है फोकस पुलर क्या कर रहे थे। ओके, है ना, तब लोग जानते हैं कौन है वो फोकस पुलर में और उसका नाम क्या है। पकड़ो उसको, है ना। लेकिन अगर वो सही कर रहा होगा ना, कोई पूछेगा नहीं। एवरीबडी इज अराउंडिंग रिवॉल्विंग थ्रू DOP, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस एंड सेट एंड एवरीथिंग। फोकस पुलर को कोई नहीं, ऐसा अंडररेटेड हो गया थिंग्स, है ना। बट ही इज अ मैन बिहाइंड एवरीथिंग। आउट फोकस हो तो करेंगे क्या? सो ऐसे बहुत सारे तुम लोग के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? आउट ऑफ फोकस करो तो नीलेश भाई बोलेगा क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा नाम क्या है? सो या फिर मैं उस चैनल से निकल गया सर। ओके, मैंने बोला कि आप अपना क्रिएटिव्स, इट्स नॉट, इट्स अगेन आई विल टेल यू, इट्स नॉट रिजेक्शन। No, it's not rejection. It's like differences, creative differences. तो मैं अपना प्रोजेक्ट लिया और आ गया। फिर मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही करूँगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। मेट भी अगर मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं मिले मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो यूट्यूब में भी तो खर्चा लगेगा ना?
सर करेंगे कुछ ना, खुद ही खुद करोगे? खुद ही खुद करेंगे, वेरी गुड। करेंगे। I'll try to find or figure out some investors. No, but you have your own company to earn. You can do it on your own company as a producer. क्या तकलीफ है? कोई करोड़ों रुपए थोड़ी लगने वाले हैं। नहीं, करोड़ों रुपए तो नहीं लगने वाले हैं। I can do by my own. But I have learned something in the school के you can be a multitasker. You can handle one company. You can pursue your dreams. है ना? You can't do one task at a time. Multitask at a time. You can do only one task at a time. मैं प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नहीं बन सकता सर, बिकॉज मैं अगर प्रोड्यूस करने जाऊंगा ना, मेरा ध्यान ये रहेगा मेरा कितना पैसा लग रहा है। क्योंकि दूसरे के पैसे उस पर ध्यान नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। नहीं, पर अभी यू आर नॉट एडमिटिंग टू योर ओन सेल्फ। नो आई एम एडमिटिंग। मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है सर, प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ा टास्क होता है। करेक्ट है ना? और वो टास्क को मैं बोल रहा हूँ, वो टास्क को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं उसके पैसे को नहीं मैनेज कर पाऊंगा। उसके लिए ईपी है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। तुम भी रख सकते हो ईपी, तुम्हारे कंपनी में प्रोड्यूस सर। ऐसे तो मेरा वो कंपनी बंद हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करता है जो रेवेन्यू अमाउंट ऑफ हाँ जो। पर यूट्यूब के लिए प्रोड्यूस करने के लिए इतने बड़े पैसे नहीं चाहिए सर। मुझे एक शो रन करना है, लाइक एक शो बनाना है। करेक्ट। इट शुड लुक लाइक अ शो। वीकली वन से फाइन। इवन मैं भी प्रोड्यूस कर ही रहा हूँ ना, करोड़ों रुपए थोड़ी लगते हैं अभी ये सेटअप में। कर ले सर। दिस इज अ पॉडकास्ट सेटअप। हाँ तो ठीक है ना, वो भी पॉडकास्ट ही है टेक्निकली। शो है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे उसमें। वो एक शो है। पॉडकास्ट इज लाइक यू टॉक अबाउट योरसेल्फ। इट इज अ टॉक शो। ओके है ना? लाइक आप अपने दिल का बात रखते हैं। यू आर रॉ, यू कैन बी रॉ हियर। या कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मैं अपने इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने इमोशंस बता रहे हैं। कल मुझे तुम्हारी बातें सुन के क्या लगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर मेरे साथ क्या क्या हुआ। करेक्ट। बट व्हेन इट इज अ शो, इट इज अ फॉर्मेट इज डिफरेंट। सर बीइंग अ डायरेक्टर आई नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शो एंड अ पॉडकास्ट। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। एंड देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस। डे एंड नाइट्स डिफरेंट, बट इट डजंट कॉस्ट सो मच। तुम्हारी कंपनी बंद नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी वो जब प्रोड्यूसर मिलेगा तब वापस करोगे। हाँ, और अदरवाइज I'll start this 2025. I'll start from January, I guess. Like yeah. Any writing work you have been doing? Writing, I have written like 2 films feature. Okay. And I have written like around 7 short stories. 7 short stories. Yeah, which is I am going to execute this year only. And one of the story was accepted by a platform. Okay. Already. A script is also registered. The things are being moving fast now. Okay. So maybe this year I'll debut my first film. First film will come 2025. रीच करना है गुरु दत्त के पास, या रोहित शेट्टी की तरह बनना है, या शाहरुख खान बनना है डायरेक्शन में। डायरेक्शन में शाहरुख खान बनना है। I love that man like anything. उनका एक बात मेरे जहन में हमेशा घूमता है शाहरुख खान का। मैंने एक उनका स्पीच, ऐसे पॉडकास्ट था, कुछ शो था, मैंने देखा हुआ था। उसमें बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं खाने पीने का, कोई ज़रूरत नहीं है सोने का, 4 घंटा सो इनफ है ना, कोई तकलीफ नहीं होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं रेस्ट लेने का, भागते रहो, दौड़ते रहो, काम करते रहो अपना, लोग देखेंगे, लोग नोटिस करेंगे, सक्सेस करोगे। सो आई ऑलवेज बिलीव ऑन दैट कि भागो जितना भागना है। मैं अगर एक दिन घूमने चला जाता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, कि मैं ये समय को यूटिलाइज नहीं कर पाया, मे बी मैं अपने सपनों से पीछे रह जाऊँगा काइंड। और डर लगता है मुझे तो डर हर बात पे लगता है सर। अवार्ड ने अवार्ड दे दिया, डर लगा मुझे। मैं कुछ अगर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ जो मेरा अभी हाल ही फिलहाल में मेरे साथ हुआ। आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट सर। ओके। और मैंने इंडस्ट्री के ना बहुत ही अच्छे एक स्क्रिप्ट राइटर जो प्रूवन है जी। क्या है मेरा स्थिति सर ऐसा है कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। नहीं ठीक है, अभी नहीं ले सकता। अब नहीं। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा पूरा, उसको रजिस्टर किया, उनको बताया, उनको मैंने दिया उसको डॉक्टरिंग करने का, है ना, ठीक है। तो उन्होंने सर्टन अमाउंट लिया मुझसे, है ना, और उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट में डॉक्टरिंग किया और चेंजेस किया कुछ, है ना। फिर वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया, मैंने पढ़ा वापस, है ना। मैं बोला यार ये तो नहीं है जो मैं फिल्म चाह रहा था बनाना। तो मैंने उनके आइडिया को ड्रॉप कर दिया, मेरा जो पहला आइडिया था। तो मेरे जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, मेरे मैनेजर है, वो सब जिनके साथ मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ सर 20-25 लोग को पकड़ के सुनाता हूँ। उनमें से एक है मनीष भाई, यू मस्ट बी नोइंग, है ना।
मनीष भाई को जो एडिटर है मनीष प्रधान, उन्होंने बहुत अच्छे मूवी किया, अभी तेरी बातों में उलझा जिया के एडिटर है। तो मनीष भाई यूज्ड टू वी हैंग आउट टुगेदर सम टाइम, बहुत मुश्किल से उनका टाइम मिलता। मैं बोला मनीष भाई बैठो ना, मेरा स्क्रिप्ट सुनाना। तो मैंने मनीष भाई को सुनाया, तो वो 2-4 गलतियां निकाले मेरे स्क्रिप्ट में। वो जो स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग होके आया था वो बोले वो तो बंद कर दे उसको। टोटली पर्सपेक्टिव ही चेंज, पर्सपेक्ट चेंज हो गया। और दूसरा बोले कि इतना पैसा तो खर्चा कर दिया। मैं बोला सर इतना पैसा खर्चा करके मुझे पता चला जो मैं लिखा था वो ठीक था। ठीक है, समटाइम्स इज अ लर्निंग लेसन। यस एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट स्पेंडिंग मनी। इफ यू आर रॉन्ग यू नीड टू स्टॉप देयर, करेक्ट इट, दैट्स इट। सेम चीज लोकल एमबीए के साथ हुआ सर, और सेम चीज मेरा अभी भी हुआ। लेकिन आपको वो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। 2023 आपने बोला ना क्या कर रहे हो तुम, 24 में क्या कर रहे हो? तो 24 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली प्रिपेयर किया सर। मैं अपने आप को लग गए सर टाइम। 25 is yours। 25 ये साल तुम्हारा, like ये साल तुम्हारा है, हो जाएगा। God has been always kind to the people who dream big and work for it। अभी ड्रीम बिग करके सर तकिए पे रख के बैठे रहोगे, ऊपर वाला थोड़ी आगे उठा के काम पे लगाएगा। काम पे तो हमको खुद लगना है। इट वॉज ब्रिलियंट नोइंग लिटिल बैकड्रॉप ऑफ योर्स, बैक स्टोरीज इंटरेस्टिंग है। वुड यू लाइक टू convey any message to the audience who will be listening to you and to inspire them what they should do if they want to enter they should into... listen to Shahrukh Khan. They should listen to Shahrukh Khan only. That's it. He is a man. देखो सर, he is a man like मैं since I have seen him from DDLJ till now, है ना, he is working like anything. He is working like anything on his body, on his acting skills. Mannerism. He is very good with women. Like he is a different man. आप उनके बारे में किसी से भी सुनो, कभी भी सुनो, है ना, you will feel happy. उनके मूवीज देखो आप खुश हो जाओगे, उनके इंटरव्यूज देखो आप खुश हो जाओगे। मैं उतना बड़ा नहीं बना हूँ सर लोगों को मैसेज दे दूँ इन फिल्म इंडस्ट्री। मे बी आफ्टर 5 years आई विल बी सिटिंग। नो, आई एम टॉकिंग ऑफ द फोर्थकमिंग जनरेशन, नॉट फिल्म इंडस्ट्री। ओके, फोर्थ जो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? सर लेट मत करो सर, 38 years में स्टेप मत लो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Okay. यू वांट टू लाइक ग्रो हाई, रीच टू योर ड्रीम्स, तो जल्दी आ जाओ, वेट मत करो। यहाँ नहीं, कहीं पे भी, कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो। करेक्ट। वहाँ पे शुरू से जाओ। अगर आप जा नहीं पा रहे हो तो इंटेंशन हमेशा वहीं का रखो, ताकि कभी ना कभी पहुंचोगे। मुझे थोड़ा लेट लगा, लेकिन मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है। शाहरुख खान का मैसेज सुन लेना भैया। उत्कल डजंट वांट टू गिव एडवाइस टू यू नाउ, ही विल गिव एडवाइस मे बी in 26 or 27 once once I will ask him for the second podcast and he'll say sir time नहीं है। तो जब टाइम नहीं होगा ना, हाँ सर, तब ये मैसेज देगा। In the meantime, wishing him good luck on behalf of Filmy Talks and Indian Film History. Thank you very 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 much. God bless you. Thank you. And hope your dreams come true this year. Sure. Thank you. Thank you. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.